ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 34 अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। इंद्रियस इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो रागदेशो व्यवस्थितो रागदेशो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्नावशमागच्छेत् तयोर्नावसमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो तौ तो हि हि यस्य अस्या परिपन्थिनः परिपन्थिनौ इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो रागद्वेषो व्यवस्थितो रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्नावशमागच्छेत् तयोर्नावसमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो तो हि यस्य परिपन्थिनः इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो रागदेशो व्यवस्थितो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। तो हि यस्य परिपन्थिनः हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इंग्लिश में पढ़िए प्लीज। Translation. Hare Krishna Prabhuji. Translation. Attraction and repulsion for sense objects are felt by embodied beings, but one should not fall under the control of senses and sense objects because they are some stumbling blocks on the part of self-realization. Purport: those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratifications, but those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures.
unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement, but one follows the rules and regulations of the revealed. हरे कृष्णा। माता जी, श्री माता जी आप पढ़ सकते हैं। Hare Krishna. But those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification, but those who are not in such consciousness should follow the rituals and regulations of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment in the cause of material is the cause of material engagement, but one who is the who follow who the condition but one who follows rules and regulation of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. For example, sex enjoyment is a necessary form, but the conditioned soul and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. For example, according to the scripture injunctions, one is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunction, a man is still inclined to have sex relationship with other women. These proper propensities are to be curbed, otherwise subliming they will be stumbling block on the path of self-realization. As long as material body is there, the necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. And yet we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow those rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under regulation may also lead to one to go astray, as much as there is always the chance of an accident. Even on the royal roads, although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has been current a very long time, owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is a very chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. But the action in loving service of Krishna detaches one from all kind of sensory activities. Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of the detachment from all kind of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shila Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभुजी? पढ़ने वाले। डिम्पल जी आप पढ़ सकती हैं। जी प्रभु जी। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित रोग दोष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तात्पर्य, जो लोग कृष्णा भावना मोहित है, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अत्यंत इंद्रिय भोग में भौतिक संबंध का कारण है, किंतु वो जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करते हैं, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरण, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है।
शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों के दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बंधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं के यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई भी खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी वियुक्त होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार की इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्त का उद्देश्य अनंत कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे 3 विषय है इम्पोर्टेंट। सबसे पहला विषय है इंद्रिय भोग की आवश्यकता हम सबके लिए, और दूसरा विषय है नियमित इंद्रिय भोग, और तीसरा विषय है पूरी तरह से इंद्रिय विषयों से विरक्त होना। ये तीनों एक के बाद एक होता है क्रम से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से हमारे अंदर ही है, और हम सबको पता है कि हमारे अंदर कौन से इच्छाएं हैं, कौन सी वासनाएं हैं। तो वो तो सबको पता है, उसके लिए किसी को बताने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही प्रकट होती है। तो इसको नियमित करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको नियमित नहीं किया गया तो फिर जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर भी ये सारे काम करते हैं, भोग करते हैं, शारीरिक भोजन करते हैं, शारीरिक सुख लेते हैं, तो ये तो जानवर भी करते हैं, पर वो नियमित रूप से नहीं करते हैं, और उनके अंदर कोई उसको दमन करने की इच्छा नहीं होती है। तो वो जानवर या पशु जो होते हैं वो अनियमित रूप से इंद्रिय भोग करते जाते हैं। पर जब इंसान की मनुष्य की योनि मिलती है, उसमें फ़र्क ये है कि हम नियम से उसको करना चाहिए, और नियमित उसमें मतलब उसमें 2 वस्तु होती है नियम में। एक तो हमें उसको दमन करना है, और दूसरा हम उसको लिमिटेड मात्रा में कर भी सकते हैं। तो इसी के लिए हमारे समाज में इतने सारे नियम होते हैं। हमारे जो मानव समाज है उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो ये नियम कानून ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें जानवरों से अलग बनाता है। पर हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य ये नहीं है कि नियमित रूप से भी करते रहना है। उद्देश्य ये है कि नियम फॉलो करके उसको कम करना है। हमें नियम फॉलो करके भक्ति करनी है, और भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे फिर हमारे मन से वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी।
अगर वो इच्छाएं हमारे मन से खत्म हो गई तो फिर नियम कानून ऑटोमेटिक हम फॉलो करेंगे, हमें किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर भक्ति करने में आनंद आने लगेगा। भक्ति करने में जब आनंद आएगा तो शारीरिक भोग लेने में अपने आप हमको इंटरेस्ट कम हो जाएगा, रुचि कम हो जाएगी। फिर हमारा पतन होने का कोई चांस ही नहीं है, फिर नीचे गिरने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट है। जो तीसरा विषय है कि विरक्ति लानी है, तो विरक्ति लाने के लिए नियम होते हैं। नियम इसलिए नहीं होते कि हम उसको करते जाए और उसी में इंटरेस्ट बना रहे। नियम इसलिए होते हैं कि उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो हमको एक जगह पे रोका जाता है तो दूसरी जगह पे हमको छूट भी दी जाती है। तो रोका किस में जाता है? शारीरिक भोग करने के लिए रोका जाता है, पर भक्ति करने के लिए रोका नहीं जाता। भक्ति आप कितनी भी कर सकते हैं, कितना भी नाम जप सकते हैं, कितना भी कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कितनी भी सेवा कर सकते हैं। उसमें कोई नियम कानून नहीं है कि कितना कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, उसमें कोई नियम कानून नहीं है। पर बाकी जो शारीरिक भोग हम करते हैं उसमें लिमिटेड होता है, उसमें नियम कानून होता है कि इतना ही आप कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक अमेरिकन एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस जो थे उनके पास एक बार एक आदमी आया जिसकी नई नई शादी हुई थी। तो सोक्रेटिस के पास वो आदमी गया और कहते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगा कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, अब मैं अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर रहा हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सोक्रेटिस ने कहा कि तुम आशीर्वाद किस लिए मांग रहे हो, मतलब तुम मैरिड लाइफ में क्या करने वाले हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं शादी मैंने इसलिए की है ताकि मैं शारीरिक सुख भोग सकूं और फैमिली अपनी बढ़ा सकूं, अपनी वाइफ के साथ मैं एंजॉय कर सकूं, सारे शारीरिक सुख ले सकूं। तो सोक्रेटिस ने कहा कि इसके लिए तो मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो उस आदमी ने कहा कि क्यों नहीं दे सकते? तो सोक्रेटिस ने कहा कि तुम जितना शारीरिक सुख भोगोगे, जितना तुम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक सुख भोगोगे, उतनी तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। तो अगर मैंने तुम्हें यह आशीर्वाद दे दिया तो ये एक्चुअली तुम्हारे लिए एक शराब की तरह होगा कि तुम जितना सुख भोगोगे उतना तुम्हारा आयु कम हो जाएगा, उतनी तुम्हारी मृत्यु जल्दी होगी, उतना बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात सही है, बट एटलीस्ट मुझे कुछ तो कंसेशन दो, मुझे कुछ तो परमिशन दो कि मैं थोड़ा तो एंजॉय कर सकूं। तो सोक्रेटिस ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरी लाइफ में तुम बस एक बार अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो वो आदमी दुखी हो गया, कह रहे बस एक बार, बस उसके बाद और नहीं। तो वो फिर दुखी हो गया। तो सोक्रेटिस ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम अपनी पूरी लाइफ में हर साल में बस एक बार कर सकते हो एंजॉय। तो वो फिर से दुखी हो गया, कहते हर साल बस एक ही बार? तो सोक्रेटिस ने सोचा कि ये तो बहुत लालची आदमी है। तो कहते चलो ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि हर महीने में बस एक बार। तो वो आदमी फिर से दुखी हो गया, कहते नहीं, ये भी मेरे लिए ये भी काफ़ी नहीं है। तो सोक्रेटिस ने फिर कहा कि चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम रोज एंजॉय करना, और अभी तुम एक कारपेंटर के पास जाओ और अपने लिए कॉफिन बना के लाओ और एक कफन लेकर आओ। तो कह रहे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कहते अगर तुम रोज करोगे तो अगले महीने तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम इसीलिए अभी से कारपेंटर को बोल दो ताकि अगले महीने तक तुम्हारा कफन तैयार हो और तुम्हें जमीन में गाड़ने की पूरी तैयारी अभी से हो जाए, ताकि एक महीने बाद जब तुम मरोगे तो तुम्हारा फ्यूनरल भी हो जाएगा। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? जो प्रभुपाद जी ने बोला है वही सोक्रेटस ने बोला है कि हम जितना शारीरिक सुख भोगते हैं उतना हमारी मृत्यु जल्दी आती है। तो जैसे वो आदमी इतना लालची था, इतना कामुक था वो, कि सोक्रेटिस ने बोला कि तुम साल में एक बार एंजॉय करो तो भी उसको काफी नहीं लग रहा था, फिर महीने में एक बार तो भी उसको काफी नहीं लग रहा था, फिर उसने बोला कि रोज चाहिए। तो सोक्रेटिस ने कहा कि तुम एक महीने में ही मर जाओगे, तुम्हारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमको बहुत ध्यान से समझना है। हमें एक्चुअली लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, बट हमारे आयु उसमें कम हो रहा है। हमारी शक्ति, हमारा शारीरिक बल, हमारी प्राण शक्ति, सब कुछ धीरे धीरे कम हो रहा है। जितना हम शारीरिक सुख भोगते हैं उतना हमारा प्राण शक्ति कम हो जाती है, और उतना मृत्यु जल्दी आती है, उतना बुढ़ापा जल्दी आता है।
तो इसीलिए हमें इन शारीरिक सुखों से इन शारीरिक भोगों से हमको बचने का प्रयास करना है। और अगर नहीं बच सकते, अगर मन में वश नहीं हो रहा है, तो उसमें थोड़े नियम होते हैं, तो नियम के अंतर्गत हम कर सकते हैं, पर उसमें भी हमें उससे बचने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि अब परमिशन मिल गई है, अब नियम कानून के अंदर हम कर सकते हैं तो बस वो हम उसी में लगे रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। वो तो जानवर करते हैं। जानवर जो होते हैं उनको पता नहीं होता है कि इसका परिणाम क्या है, ऐसा करने से क्या परिणाम होगा, पर इंसान के रूप में हमें पता होना चाहिए कि इसके परिणाम क्या क्या होंगे और इसका कैसे हमें वो भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है, हमें इससे विरक्ति लाने का ट्राई करना है। तो विरक्ति तभी आएगी जब हम पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावामृत के पद पर आसीन होना है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है शिला प्रभुपाद का। जब तक हम पूरी तरह मन और शरीर से भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से युक्त नहीं हो जाते, स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक मन पूरी तरह शांत नहीं होगा, हमारी इच्छाएं पूरी तरह शांत नहीं होगी और हम पूरी तरह से भक्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है, पर गुरु के मार्गदर्शन में ये पॉसिबल है। अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं तो फिर ये पॉसिबल है, और अगर गुरु के मार्गदर्शन में नहीं रहते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है। हम अपने आप से अपने मन को वश में नहीं ला सकते, पर हम गुरु की कृपा से और कृष्णा की कृपा से हम अपने मन को वश में ला सकते हैं। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी के गाइडेंस के अंडर हमें भक्ति करते रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है, और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन पूरी तरह से विरक्त हो जाए इंद्रिय भोग से, और हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में युक्त हो जाए, तभी हम बच पाएंगे। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और शरीर के भोगों से मुझे जितना ज़्यादा हो सके उतना बचना है, पूरी तरह से विरक्त होना है, और मुझे आत्मा के स्तर पे आना है। जितना हम शरीर का भोग करते हैं उतना हम आत्मा के स्तर से नीचे आ जाते हैं, और जितना हम भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, गीता पढ़ते हैं, आरती करते हैं भगवान की, और भगवान को सजाते हैं, तो जितना हम ये कार्य करते हैं उतना हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाता है, और फिर इंद्रिय भोग से ऑटोमेटिक हमारा मन हट जाता है। तो भक्ति करना ही सबसे बेस्ट तरीका है माया से बचने का। नहीं तो माया बार बार हमें खींच के ले जाती है और बार बार हमको इंद्रिय भोग में वो लगा देती है। तो इससे बचने के लिए प्रभुपाद जी की शरण में आना और भक्ति करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही एकमात्र तरीका है। तो यहाँ पे कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा एक सवाल है प्रभु जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी एक जो ब्रह्मचारी फॉलो करते हैं वो अपने मतलब वो 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 कृष्ण भक्ति को किस लेवल पे ले जाते हैं कि वो इतने समय तक उस चीज को मेंटेन कर पाते हैं, अपनी चेस्टिटी को मेंटेन कर पाते हैं? वो किस लेवल पे अपनी भक्ति को परफॉर्म करते हैं जिससे वो इतने सालों तक ब्रह्मचारी रह सकते हैं? वो उस लेवल पे चले जाते हैं कि वो प्रभुपाद जी के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो जाते हैं। मतलब प्रभुपाद जी का ही चिंतन 24 घंटे करते हैं, और प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते रहते हैं, उनका किताब पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में प्रचार करते रहते हैं, और 24 घंटे वो सिर्फ प्रभुपाद जी का ही चिंतन करते हैं। तो उस लेवल पे वो चले जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी उस लेवल पे पहले से है। ब्रह्मचर्य का जो लेवल है, अल्टीमेट लेवल जो है, मतलब इस भौतिक संसार से परे,
वो प्रभुपाद जी ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, और जो ब्रह्मचारी हमेशा प्रभुपाद जी का चिंतन करते रहते हैं दिन भर, वही इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मतलब वो प्रभुपाद के चरणों में हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाते हैं, और वो पूरा दिन एक सेकंड के लिए भी प्रभुपाद जी को भूल नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी अभी उस लेवल पे है कि वो एक सेकंड के लिए भी कृष्णा को भूलते नहीं है, और जो प्रभुपाद जी के चरणों में होता है वो एक सेकंड के लिए प्रभुपाद को भूल नहीं सकता। तो मतलब कि वो भी कनेक्ट हो गया भगवान से। प्रभुपाद जी कृष्णा से कनेक्ट है, और ब्रह्मचारी जो होते हैं वो प्रभुपाद से कनेक्ट, तो इसीलिए वो भी कृष्णा से कनेक्ट प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो अभी के समय में यही तरीका है, अगर आपको ब्रह्मचर्य मेंटेन करके रखना है हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए प्रभुपाद जी के सर्वेंट बन जाओ। यही सबसे ऊपर से, यही टॉप लेवल है सबसे। जी प्रभु जी। और एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि मन में जब बुरे विचार आते हैं तो बस जय शिला प्रभुपाद जोर से बोलो 108 बार। मतलब माला पकड़ लो और 108 बार बोलो जय शिला प्रभुपाद, 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 ऐसे 108 बार बोलो। तो जितने बुरे विचार आ रहे हैं सब भाग जाते हैं। मतलब जी प्रभु जी। 108 बार बोलने में आपको 5 मिनट लगेंगे, जय शिला प्रभुपाद की एक माला करने में आपको 5 मिनट लगेंगे बस। बट 5 मिनट में सारे बुरे विचार भाग जाते हैं। जैसे खेत के अंदर या घर के अंदर जानवर घुस आता है ना, तो आप लाठी लेके उसको जोर से चिल्लाते हो तो वो जानवर भाग जाता है। तो ये जो बुरे विचार आते हैं मन में, जानवर की तरह है, और आप जैसे ही जय शिला प्रभुपाद की एक माला करते हो तो सारे भाग जाते हैं। जी प्रभु जी। एक एक- हरे कृष्णा, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। संसार में जैसे लोग कहते हैं, हरे कृष्णा, प्रभु जी मेरी आपकी आवाज कट हो रही है। हरिया हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है। प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि जैसे ये संसार का मतलब लोगों ने बना रखा है कि विवाह जरूरी है, क्या अगर अगर हम चाहते हैं कि ये सब मतलब ये सब ना हो, ये सब जिम्मेदारियां और ये सब मतलब ना हो, और हम अलग मतलब सिंगल भी रहने की कोशिश मतलब रह सकते हैं, तो क्या उसमें कोई दिक्कत होगी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको प्रभुपाद जी को पूरी तरह सरेंडर करना पड़ेगा। पूरी तरह मीन्स प्रभु जी मेरे को पूरी तरह का मतलब बता दीजिए। पूरी तरह मतलब दिन भर उनकी सेवा करनी है बस। संसारिक काम छोड़ के। हाँ। अगर आप कर पाओगे दिन भर, प्रभु जी प्रभुपाद जी की सेवा दिन भर कर पाओगे तो ब्रह्मचारी रह सकते हो। और अगर नहीं, अगर हम मतलब अगर संसारिक काम नहीं छोड़ पाए जिम्मेदारियों की वजह से, तो फिर हमें कौन सी उसमें जाना चाहिए? पर अगर सांसारिक जिम्मेदारी की वजह से आपको काम करना पड़ता है, बट अगर बिना शादी किए रह सकते हो तो रहो, ऐसे ही रहो।
प्रभु जी आपको कभी देखो, कभार मेन पॉइंट ये है कि आपको जी सेवा तो करनी पड़ेगी। हाँ जी तो आप अगर प्रभुपाद जी की सेवा में रहोगे दिन भर इस्कॉन में आके, तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपको जॉब करना है, पर जॉब करते हुए अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो और आप मतलब मन की इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो, तो बिना मैरिज के भी रह सकते हो आप। और अगर जॉब करते हुए आपके मन में इच्छाएं आती है, आपको एंजॉय करने की इच्छा आती है मन में, और आप नहीं कंट्रोल कर सकते मन को, तो फिर आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी मुझे थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम अपने मन पे स्थिर कंट्रोल कर सकते हैं या हम मतलब गृहस्थ में जाना चाहिए हमें। आपको ऐसे पता चलेगा, अगर आप दिन भर सेवा कर पा रहे हो प्रभुपाद की, तो मतलब कि आपका माइंड स्टेबल है। अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, मन भटक रहा है बार बार, तो मतलब कि अभी आपका माइंड स्टेबल नहीं है। आपको दिन भर कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। सुबह जी जी मंगल प्रभु आरती, जी। फिर 16 माला, फिर गीता का पाठ करना, फिर प्रचार करना, लेक्चर लेना, आरती करना, भोग बनाना, ये सब कुछ दिन भर अगर आप कर सकते हो और रोज कर सकते हो और हमेशा के लिए कर सकते हो, मतलब कि आपका मन अभी स्टेबल हो गया। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते, मन भटकता है संसार की तरफ, तो मतलब अभी आपका मन स्टेबल नहीं है। जी प्रभु जी। और हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे ये सवाल था कि कभी कभी हम महामंत्र भी करते हैं, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, पर उससे भी कुछ शांति नहीं मिलती। आपने अभी जब बताया जय प्रभुपाद, पर हमें डेटीज को देख के भी वो शांति नहीं मिलती, पर प्रभुपाद को देख के उनकी लेक्चर सुन के तभी हमको शांति मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी परमात्मा का एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है, चैत्य गुरु है। तो क्योंकि अभी हमारा मन एक्सटर्नल, मतलब हम परमात्मा को डायरेक्ट देख नहीं सकते अभी, तो इसीलिए परमात्मा ने ही प्रभुपाद को भेजा है, ताकि उनका फोटो देखे, उनका लेक्चर सुने, उनकी आवाज़ सुने। और क्योंकि हमको कोई चाहिए होता है जिसको हम देख सके, जिसको हम सुन सके, तो इसलिए प्रभुपाद जी को भेजा गया है। उनकी किताबें उन्होंने लिखी है, उनके रिकॉर्डिंग उन्होंने कराए हैं, उन्होंने अपनी बुक्स प्रिंट कराई है, इसीलिए ताकि हमें, हम अभी अंदर नहीं देख सकते, हम बाहर ही देखते हैं। तो बाहर ही देखना है तो बाहर प्रभुपाद को देखो, उनका लेक्चर सुनो और उनकी बुक पढ़ो और उनको प्रसाद ऑफर करो, और तब शांति मिलती है। जो परमात्मा अंदर है वही प्रभुपाद के रूप में बाहर आया है। अ, प्रभु जी और एक सवाल था मेरा, जैसे मैं जब भोग ऑफर करती हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान शायद मुझसे एक्सेप्ट ना करे, तो मैं बस प्रभुपाद को ही ऑफर करती हूँ क्योंकि यही एक्सेप्ट करेंगे। भगवान को ऑफर करूंगी तो भी शायद वो मुझे एक्सेप्ट ना करे, तो मैं उनका, तो मैं बस प्रभुपाद के ही मंत्र बोलती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, वो तो भी ये ठीक है। क्या अपराध है या ये? नहीं, प्रभुपाद ने बोला है, इफ यू जस्ट स्टैंड द नेम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज ऑल्सो इनफ। अगर सिर्फ गुरु का नाम लेते हो तो भी काफी है। एक और इंसिडेंट है, एक माता जी है अमेरिका में, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, अगर मरते समय मैंने कृष्णा को याद नहीं किया, अगर आपको याद किया, तो क्या फिर भी मुझे कृष्णा मिलेंगे? तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ, मुझे कृष्णा ने भेजा है, अगर आप मुझे याद करोगे तो आप, तो भी आपको कृष्णा ही मिलेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल और है प्रभु जी। हाँ, बोलिए। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि अगर कोई लाइफ पार्टनर होगा तो वो और मैं मिलके साथ में अच्छे से सर्विस कर सकेंगे कृष्णा की। ऐसा भी थॉट आता है क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसा रहता है तो फिर इतना मतलब वो नहीं हो पाता है। मतलब कोशिश तो पूरा करता हूँ मगर मन में वो थॉट आता है।
कि अगर और अच्छे से सर्विस होती। हाँ, तो ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना भी चाहिए। ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रभुपाद जी से आप प्रे करो, अगर उनके नज़र में ऐसा कोई है और वो आपको मतलब प्रभुपाद की इच्छा है कि वो आप शादी करो और आप दोनों साथ में सेवा करो, और उनकी नज़र में ऐसा कोई पार्टनर है जो आपके साथ मिलके रहेगा। क्योंकि ऐसा बोलना आसान होता है, बट रियलिटी और बोलने में फ़र्क होता है। हम तो यही चाहते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, हम दोनों मिलकर भक्ति करें। ये बोलना बहुत इजी है, बट ऐसा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा पार्टनर आ गया जिसके मन में माया है, आपकी लाइफ फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप आसानी से भक्ति नहीं कर पाओगे। आप फिर सोचोगे कि पहले ही वाली लाइफ अच्छी थी। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के आपको प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर सचमुच प्रभुपाद चाहते हैं और भगवान चाहते हैं कि मैं शादी करूं और मेरे को ऐसा पार्टनर मिले, और उनकी नज़र में ऐसा कोई पार्टनर है, क्योंकि ये सब भगवान की और गुरु की इच्छा से ही होता है। उनकी कंट्रोल में होता है ये शादी और बच्चा होना और मैरिड लाइफ, और भगवान की भक्ति, और दोनों मिलके करेंगे, दोनों साथ मिलके भक्ति करेंगे। ये एक्चुअली उनकी कृपा से ही होता है। तो अगर आपने अपने मन से सोचा है और आप सोच रहे हो कि हम ऐसा सचमुच हो जाएगा, तो हमारे मन से सोचा हुआ सच होता नहीं है। पर अगर भगवान ने सोचा और प्रभुपाद ने सोचा कि हाँ तुम्हारी शादी होनी चाहिए और तुम साथ में रह के भक्ति करो, अगर ऐसा प्रभुपाद ने सोचा है तो फिर वो होगा, और वो फिर सक्सेसफुल भी होगा। हम लोग जो प्लान करते हैं वो अधिकतर फेल होता है, और प्रभुपाद जो प्लान करते हैं वो सक्सेस होता है। तो हमें अपना प्लानिंग नहीं करना है, हमें प्रभुपाद जी का प्लानिंग पे चलना है। तो फिर लाइफ में जो कुछ होगा, ब्रह्मचारी रहोगे या मैरिड रहोगे, जैसे भी रहोगे, अगर वो प्रभुपाद जी की इच्छा से रहोगे तो फिर आपका लाइफ सक्सेसफुल होगा, नहीं तो लाइफ मुश्किल होगा। जी प्रभु जी। तो आपको सिर्फ वो करना है जो प्रभुपाद चाहते हैं, बस। बाकी वो जो चाहते हैं अगर आप करते रहोगे तो आपके लिए जो भी अच्छा है वही होगा। आपके नेचर जी के प्रभु जी। अनुसार, आपके नेचर के अनुसार, आपकी आदतों के अनुसार जो कुछ भी सबसे अच्छा है वही प्रभुपाद करेंगे, अगर आप उनके अनुसार चलने का ट्राई करोगे। जी प्रभु जी। जी, और कोई क्वेश्चन किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। तो हमारे साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि हम प्रभुपाद से कुछ प्रे कर रहे हैं और वो हो जाता है। पर हमें ये समझ नहीं आता है कि ये प्रभुपाद चाह रहे हैं या ये ऐसे ही हो रहा है, मतलब हम इस डायरेक्शन में जाए। ये प्रभुपाद की मतलब उन्होंने परमिशन दिया है कि अभी भी ना जाए, कन्फ्यूजन रह जाता है। इस समय कैसे समझे हम कि प्रभुपाद का ये नहीं, मतलब उन्होंने परमिशन दे दिया? आप आपने जो सोचा है अगर वो हो रहा है, पर जो आपने सोचा था वो क्या आपने प्रभुपाद जी से प्रे किया था या नहीं किया था? जी, उनसे ही प्रे करती हूँ। हाँ, तो उनसे प्रे करने के बाद हो रहा है तो मतलब उनकी इच्छा है, मतलब वो परमिशन दे रहे हैं। जी। और अगर मतलब फिर भी थोड़ा-सा डाउट है कि हम करें कि ना करें, मतलब नहीं उनका फिर उनका जब एकदम स्ट्रॉन्ग वो होता है कि वो अच्छे से वो मतलब हमको समझ आता है कि हाँ, उन्होंने यही बोला, अच्छे से जब दिमाग में होता है, वो कैसे पॉसिबल है? वैसे